یسوع کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ جتنے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے ان سب کو بھی ہم اس لائیو سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دیتا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس کلام کی خدا عزت کرتا ہے ہم پر کتنا زیادہ واجب ہے کہ ہم اس کی عزت کریں۔ اور خدا کے کلام کی عزت اس میں نہیں کہ آپ اس کو غلاف میں لپیٹ کر بہت اونچی جگہ پر رکھیں یا کسی باکس میں بند کر کے رکھیں یا بہت زیادہ اس کو آپ اچھے کور میں لپیٹ کے رکھیں، یہ بھی ایک اچھا انداز ہے، لیکن کلام کی عزت کس میں ہے؟ داؤد کو یہ تجربہ ہے، کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا۔ ہیلیلویا! اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ تیرے دل میں۔ جس دل میں خدشات ہیں، جس دل میں خطرات ہیں، جس دل میں بھیانک خیالات ہیں، اور کلام میں لکھا ہے رسول کو یہ ایکسپیرینس ہے، کہتا ہے ہم ہر اس خیال کو جو مسیح کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ڈھا دیتے ہیں۔ خیالات ہی کی جنگ ہے اصل میں، اور رسول کہتا ہے ہمارے بدن کے اندر ہی جنگ ہے۔ روح بدن کے خلاف خواہش کرتا ہے اور بدن روح کے خلاف، اور ہم کلیم دوسروں کو کرتے رہتے ہیں، میری ناکامی کی یہ وجہ تو ہے، میری ناکامی کی یہ وجہ تو ہے۔ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج میں بڑے خاص نقطے پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ Praise Jesus, hallelujah. Glory to Jesus. Praise Master Jesus. آپ کو یہ بخوبی پتہ ہونا چاہیے کہ جب کلام کا حصہ ہو تو میں بہت اس بات کے لیے الرٹ ہوتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، کیونکہ لائیو سروس جا رہی ہوتی ہے تو سروس میں آپ کو اگر کسی چیز کے بارے میں کہوں تو پھر یہ آپ کے لیے فیل ہوگا۔ آپ کو مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اور یاد رکھیں جو بسکٹس یا کینڈیز ہیں یا جو کچھ بھی ہے یہ چرچ میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اس پہ ذرا کنٹرول کریں آپ، ٹھیک ہے؟ چرچ کے بعد آپ بے شک مجھے خوشی ہوگی کہ آپ فروٹ چاٹ کھائیں، پیزا کھائیں، برگر کھائیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 8 ہے، میرے ساتھ نکالیے۔ پاسٹر طارق 42ویں آیت سے اس کو تلاوت کر کے ہم آئیں گے، اور پھر تھوڑا سا پیچھے بھی ہم جائیں گے، لیکن جب ہم اس کی ضرورت فیل کریں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 8 ہے اور اس کی 42ویں آیت۔ یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا۔ ایکچولی لوگوں کے پاس بہت سی وجوہات ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، بہت سا کلام ان کو یاد ہے، بہت سی آیات ان کو یاد ہے، بہت سا مذہب ان کے اندر محفوظ ہے، بہت سی مشن پرستی ان کے اندر محفوظ ہے، وہ ہارتے نہیں ہیں لیکن نظر بھی نہیں آتے عمل کرتے ہوئے، جیسا خدا چاہتا ہے ویسی پرفارمنس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میں اس کو کہتا ہوں کہ آرٹیفیشل پرفارمنس، وقتی طور پر پرفارمنس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عملی زندگی میں کوئی چیز ان کی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بڑی خاص بات ہے، ذرا بات یہاں سے چل نکلی تھی 34ویں ہے، مسٹر سرین آپ اس کو پڑھیے ذرا، 34ویں ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے۔ ایک منٹ ہے، کیا پرابلم ہے یار؟
In Jesus name. जी 34वीं आयत दोबारा तलावत करेंगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। अब गौर करें कि यीशु मसीह आजाद करने आया है और वो यीशु मसीह के होते हुए भी गुलामी की जिंदगी में वो रह रहे हैं। और कई दफा यीशु घर में होता है और हमारी जो सोच होती है वो बिल्कुल यीशु के बारे में अपोजिट होती है। यीशु खाने के लिए शमौन के घर में मौजूद है, लेकिन उसका ख्याल क्या है, अगर ये नबी होता तो ये जानता, क्योंकि जो इससे बातें करती है वक्चलन है, वो ये समझता है कि यीशु को कुछ भी इल्म नहीं। और बड़ी ज़बरदस्त बात है यहाँ पे, वो यीशु मसीह ने उनको कहा है कि मैं सच्चाई हूँ और जो सच्चाई से वाकिफ़ होगा सच्चाई उसे आज़ाद करेगी। तो अब ज़रा गौर कीजिए, यीशु ने कहा और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा अब तक रहता है। बस अगर तुम्हें आज़ाद अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद हो। वाकई आजाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर मजहब जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है, तुम अब्राहम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो। पर तो भी मेरी कत्ल की कोशिश में हो। अब जरा देखें, बाप अब्राहम और उसकी लाइफ, उसका लाइफ स्टाइल देखिए, सिर्फ नौकरों में झगड़ा हुआ है। जरा मैं बड़ी खास बात करने जा रहा हूं। कुएं पर अब्राहम और लूत के नौकरों में झगड़ा हुआ, सिर्फ झगड़ा, पानी जानवरों को पिलाने से। और आप जानते हैं अब्राहम का रवैया क्या है? उसने अपने भाई लूत को बुलाया और कलाम में लिखा, उसके साथ डायलॉग किए, लिखा जिसको जिससे शिकायत हो वो उससे करे। इतने क्यों है जिससे शिकायत है उन्हें पता ही नहीं थे, सारे को पता होता है एलवेदना की शिकायत। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब्राहम की बात कर रहे हैं, पर अब्राहम की उसका जो रवैया है वो उनकी जिंदगी में हमें नजर ही नहीं आ रहा। अब्राहम का रवैया क्या है? झगड़ा हुआ है दोनों में, नौकरों में पानी पिलाने से। उसने लूत को बुलाया, उसने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, आप बैठ के बात करते हैं, आज ये झगड़े हैं, कल को ये झगड़ा हम तक पहुंचेगा, ये अच्छी बात नहीं, हम बैठ के फैसला करें, तू क्या चाहता है। लिखा लूत चालाक था, उसने सारी जो तराई की जमीन थी, जो जरखेज जमीन थी वो ले ली, और अब्राहम ने कहा ये भी ले ले, ये भी ले ले, और सब कुछ दे दिला के। लिखा जब अब्राहम घर में आया तो खुदा उसके पास आया और खुदा ने कहा अब्राहम मुझे तेरा ये रवैया बड़ा पसंद आया है, तूने तो थोड़े से असासे, थोड़ी सी जमीन उसको दी है, अब अपनी आंखें आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तेरी नजर जहां तक जाए वो सब कुछ मैंने तुझे दे दिया। कहते हैं हम अब्राहम की औलाद है, पर जरा गौर कीजिए, जरा थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन मैं इसको आसान करने की कोशिश करूंगा। लिखा है तुम आजाद किए गए हो, अगर तुम वाकई आजाद हो तो अब वो अपनी आजादी नजर तो नहीं आ रही, पर वो जरा ना कवर कर रहे हैं इस कानून, जिस तरह असी कभी कभी कवर कर नहीं पाई जी असी ठीक है। एक आंटी के घर में हम चले गए, उन्हीं मेरे साथ थी, पता है बिशप चाली कॉलोनी में हमारी एक फूफो रहती हैं, तो मैं उनके बेटे के लिए दुआ करने लगा। खुदा ने कहा कि ये चिराग बत्ती करते हैं। मैंने उनको कहा फूफो जी चिराग चूक के नीचे मार दे, तो पता की कर दी, नहीं 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 पुत्र नहीं 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 ऐसे का नाम याद है, असी तो यस्सू तो कुछ नहीं, असी तो यस्सू तो ही मार रहा है। मैं कभी हो सकता मुझे ही कोई गलत अपील हुई है। खैर मैंने दुआ की, मैंने कभी अपनी पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ी जब मैं कहीं जाऊँ, लेकिन मैं उस दिन उठा और मैं अचानक उस कमरे में चला गया। वो कमरा बंद था, मैंने खोला और आपको पता है अंदर क्या हो रहा था?
7 چراغ دیویوں کے آگے چل رہے. کہ وہ بی بی کی کہہ رہی نہیں 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 میں نہیں پادری صاحب میں نہیں, لیکن خدا جانتا ہے یہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. یسوع نے جب کہا آزادی تو دکھاؤ, ابراہم کی اولاد تو ہو, ابراہم کا رویہ تو دکھاؤ, ابراہم کی بات کرتے ہو, ابراہم کی طبیعت کہاں ہے, ابراہم نے جو علم پایا وہ تمہیں تو نظر نہیں آ رہا. بڑی خاص بات میں کرنے جا رہا ہوں, پڑھیے ذرا آگے کیا لکھا ہے. تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پا. کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ, روایات کلام نہیں ہے. کرسیاں ہیں جلا لو چرچ, کرسیاں سیٹنگ ہے کر لو, یہ سیٹنگ یہ ٹائم جو سیٹنگ ہے وہ جو سسٹم ہے آپ کے چرچ کا وہ کلام نہیں ہے. میری بات کو ذرا غور سے سنیں. کلام یہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا تم میرے قتل کرنے کے لیے تیار رہتے ہو اور کہتے ہو باپ ابراہم کی اولاد ہے. ابراہم نے کیا کیا ہے, نوکروں میں جھگڑا ہوا ہے اور برداشت نہیں کر سکا اور سارا کچھ قربان کر دیا ہے. بات ابراہم کی کرتے ہو اور کام کس کے ہیں, شیطان کے. میں بڑی زبردست آپ کے ساتھ باتیں کرنے جا رہا ہوں, بڑی زبردست باتیں ہیں. ذرا پڑھیے یوحنا کی انجیل میں سے. ہاں جی. میں نے جو اپنے باپ کی بات دیکھا ہے وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے. ٹھیک ہے. انہوں نے جواب مجھ سے کہا ہمارا باپ تو ابراہم ہے. وہ ادھر ہی ٹکے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو مذہبی ٹھیکیدار بتا رہے ہیں, مذہبی مذہب ان کے اندر ہے, کلام میں لکھا ہے, نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں ہم تو ابراہم کی اولاد ہیں. اب جب ان کی پالش ہوئی نا, ان کو یسوع نے ٹٹولا, تو اب آگے چل کے 34ویں 42ویں 70. یسوع نے ان سے کہا یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا. اب پہلے کہہ رہے ہیں ابراہم ہمارا باپ ہے, اب چینج ہو گیا ہے, خدا اب خدا ہمارا باپ. ہاں جس طرح ہم بھی ریپلیس کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں نا ریپلیس, ایک نہیں دوسرا, دوسرا نہیں تیسرا, تیسرا نہیں چوتھا, نہیں جی کلام بھی سننا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ کلام ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہے. یہ کلام اگر ہر بندے کے پاس کی بات ہوتا تو یسوع مسیح 12,000 یا 12 لاکھ کا چناؤ کرتا, صرف 12 کا چناؤ نہ کرتا. یسوع مسیح کو 12,000 12 لاکھ 12 کروڑ کی نہیں, 12 لوگوں کی ضرورت ہے. 12 لوگوں کا مطلب ہے بہت چھوٹی تعداد چاہیے, لیکن وہ چاہیے جو 12 کروڑ بلکہ 12 کھربوں کو چینج کر دے. دیکھ لیں وہ 12 لوگ تھے, اور جو توما ہے وہ ٹیکسلا تک خدا کا خادم آیا, اور ٹیکسلا کی بات ہو رہی ہے تو چلے میں خوشی سے اناؤنس کر دیتا ہوں, ہمارے جو کالج کا ٹرپ ہے وہ ٹیکسلا جا رہا ہے 5 تاریخ کو. یہ وہ ہسٹوریکل جگہ ہے جہاں پہ توما رسول نے بیٹھ کر کافی کچھ لکھا ہے. اور خدا اس شخص کو برکت دے. وہ آرکیٹیکٹ تھا, بہت بڑا نقشہ نویس تھا, اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو شاہ جہاں کا جو سارا وہ اس کا محل ہے اس نے ڈیزائن کیا ہے. تو خاص کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا آپ سے کلام کرے تو آپ کلام کی بات سنیں, آپ اپنی وجوہات نہ بیان کریں کہ میرے پاس یہ بھی وجہ ہے, میرے پاس یہ بھی وجہ ہے. ٹھیک ہے. یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا, اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تم مجھ سے محبت رکھتے, تو تم مجھ سے محبت رکھتے, اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا, اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں, کہ میں آپ سے نہیں آیا, کیونکہ میں اپنے آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا. کیونکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے. تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے, تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے. اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے. اور کہو کہ بھائی صاحب اتحاد والا نہیں ویلو ریگولر کلام بھی سنتا ہے, یہ کس کلام کی بات ہو رہی ہے؟ سننے تک محدود یہ کلام نہیں ہے. لکھا سنے ہوئے کلام نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں نہ بیٹھا. ٹھیک ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. یہ بہت اچھی بات ہے, سننا بھی مسیح کے کلام سے ہے اور عمل بھی کلام کے مطابق کرنا. صرف ایمان نہیں, ایمان کی بات کریں تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے, کہ اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں. اور آگے بڑی زبردست بات ہے جی پاسٹر ڈائریکٹ پڑھیے ذرا.
मेरा कलाम सुन नहीं सकते, तुम अपने बाप अबलीस से हो। ये ज़रा हार्ड बात है, ये सख्त बात है। आज अगर आप किसी को इब्लीस का फर्जंद कहें हैं या शैतान कहें, तो आप जानते हैं ना कि वो कितना फील करेगा, कितना महसूस करेगा इस बात को। और कलाम में क्या लिखा है? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते, और जब तुम कलाम नहीं सुनते तो तुम्हारी जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। ये इब्लीस कौन, कहां से आता है, किसने उसको देखा है? देखा खुदा के बेटे आए और शैतान भी आया। समझने की बात है। शैतान इसलिए शैतान है कि वो सुनता है। शायद यहां भी कहीं कोने में बैठा हो, सेंटर में तो बैठने की उसको इजाजत नहीं है, वो कोने में किसी साइड पे बैठा हो, लेकिन मैं उसको ये कहना चाहता हूं कि शैतान तू इसलिए शैतान है कि तू सुनता है लेकिन खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, इसलिए तू शैतान है। और कलाम कहता है अगर तुम सुनते हो तो फिर अमल क्यों नहीं करते? अगर तुम मेरे कलाम को बर्दाश्त ही नहीं कर, और यहाँ पे बड़ी बड़ी पेनफुल बात है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हें कहना क्या चाहता हूं, मेरी पेन क्या है, मेरी दर्द क्या है, मुझे तकलीफ क्या है कि तुम मेरा कलाम सुनते हो, जोश में आते हो, लेकिन उस पर अमल नहीं। तो फिर तुम किससे हो? देखा, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है। सच्चाई पर कायम नहीं रहा। बताइए कब किसी का भला किया उसने? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक शख्स था, वो हर रोज खुदावंद से दुआ में कहता, खुदावंद मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, खुदावंद मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए। खुदावंद को पता था इसको 2 लाख दिया तो ये और भी ज्यादा बदचलनी करेगा, ये ऐशो इशरत करेगा, उड़ा देगा पैसे को। खुदावंद ने उसको नहीं दिया। खुदावंद दिल और गुर्दों को जानता है। 3 हफ्ते गुजरे तो कहता, खुदावंद तू मेरी कोई नहीं सुनता। तो कहता शैतान कोली सी। उन्हें कहा हाँ जी जनाब। उन्हें कहा 2 लाख दे। उन्हें कहा 3 दवांगा। वेला वेखे खुदा कोई नहीं सुनता तो शैतान फौरन ही उन्हें कहा मैं कल घोड़ा बन के आवांगा तेरे को। की बन के आवांगा? घोड़ा बन के आवांगा कि तू मैनू बेच लई तो 3 लाख रुपया तेन मिल जाएगा। वो कलाम में लिखा, पूछा जब नहीं कि शैतान भी रूहानी फरिश्ते की सूरत धार ले। वो अनुवाल है नहीं। वो भी आपने कभी रंगीन फोटोकॉपी करवाई शनाख्ती कार्ड की है? एक दिन मैं करवाई तो मैं क्या, मैं असल नकल च पहचान ही नहीं हो रही। वो नकली जी सी ना ज्यादा खूबसूरत लग रही सी। लेकिन जब मैं बैंक में गया तो उन्होंने कहा जनाब और असल कितने जे? तो मैं गया असल नहीं, मुझे लग रहा था कि वो नकल जो है वो असल से बेहतर। शैतान बड़ा चलाक और मकार है, वो हमारी ही तरह के लोगों में से होकर आता है और कई दफा कहता है ए कलाम खुदा लोई, पर वो खुदा की तरफ से नहीं होता। अब 2 लाख मांगा, 3 मांगा, शैतान कहना मैं कल घोड़ा बन के आवांगा। और वो ऐसा ही किया। उसने आया और वजीर गुजर रहा था। उन्हें क्या है माना क्या बंदा कि इतना महंगा घोड़ा है वो कितों आ गया? उसने बादशाह को जाकर बताया कि वो फला बंदा मंडी में है। मंडियां लगती थी उस वक्त, पुरानी बात है। रुका उसके पास बड़ा जबरदस्त और कीमती है। बादशाह आपको पता है शौकीन होते हैं। उसने कहा हाँ कितने में दे रहा है? पैसे बहुत ज्यादा मांग रहा है। उसने कहा अगर घोड़ा अच्छा है, असली है, तो फिर जितने का वो कहता है ले आ।
अब वो घोड़ा ले आया, बादशाह ने देखा, बादशाह को पसंद आया। बादशाह ने कहा अगले हफ्ते मैं इसी पे सवारी करूँगा। तब बादशाह जो थे अपनी रियाया यानी कौम के साथ हर हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात के लिए जाते, वो चेक करते कहाँ पे क्या बिक रहा है, कितने महंगाई तो नहीं कर रहे दुकानदार। वो अब जो अच्छे बादशाह थे वो अपनी रियाया के साथ मिक्स होते थे, वो प्यार करते थे, पब्लिक के साथ दिली होते थे। बारी आ गई, बादशाह ने वजीर से कहा ज़रा घोड़े को ना ज़रा अच्छी तरह तैयार कर लो, कल मैंने सवारी करनी है। उन्होंने कहा ठीक है जनाब। रात उन्होंने घोड़े को बहुत ज़बरदस्त हैं, वो क्या करते हैं उसको, आप पंजाबी में खरकना कहते हैं, चले वो उसको तैयार किया बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अब सुबह हुई और जब वो घोड़े को लेने आए तो आपको पता है वहाँ मंदिर बदल गया, वो गधा बन चुका। उन्होंने कहा शायद हमें गलत फहमी हुई है। उन्होंने जो घोड़ा संभालने वाला शख्स था उसको बुलाया, उसने कहा वो बादशाह का जो सवारी वाला घोड़ा है वो किधर है? कहते जो वो जो अस्तबल है उसमें बांधा हुआ मैंने, वो अकेले बांधा। कहते वो तो गधा है। नहीं नहीं जनाब, आपको तो घोड़ा था। वो उन खलबली मच गई। वो वजीर ने कहा इससे पहले कि बादशाह घोड़ा तलब करे, उस शख्स को बुला कर लाओ जिसे हमने खरीदा है। वो 3 लाख रुपये असराने रख के ना 50,000 खर्च भी कर लिया होगा, 2.5 लाख रुपये आया सी उनको। वजीर वहाँ पहुँच गया, उसने उसको बड़े गुस्से से कहा ओए वो जो तूने हमें दिया वो घोड़ा है? कहता है जनाब आपने घोड़ा ही खरीदा है। कहता है वो इधर आ, उसको लेके गए। कहा ये देखिए गधा है, तूने हमारे साथ धोखा किया है। उसने कहा जनाब लोगों के सामने आपने घोड़ा खरीदा है। उसको समझ आ गई, उन्हें तो पता सी ना कि किसको मंगे उन्हें। उसने कहा आप जरा बाहर जाए, मैं इससे जरा बात करना चाहता हूँ उस गधे से। तो उसके करीब गया, उसके कान में कहता है ऐ की तो खा देता ही। तो उसने कहा इसीलिए मुझे शैतान कहते हैं कि मैं असल गल नहीं करता, मैं जो हूँ वो नहीं दिखाता, मैं जो नहीं हूँ वो दिखाता हूँ, और यही मेरा काम है। और वो बेचारा जरा सी ना और फाय लग गया। यही शैतान का काम है। कलाम में लिखा है तुम अपने बाप इब्लीस से हो। वजह मैं बता देता हूँ क्यों, किस वजह से हम इब्लीस के हो सकते हैं। आगे लिखा है, इसमें इसको खत्म करेंगे। वो शुरू से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं, और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, उसमें सच्चाई, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, जब वो झूठ बोलता है अपनी ही सी कहता है। तो अपनी ही सी कहता है। सुन ले, शैतान की सबसे जो बड़ी सिफ्त है वो पता क्या है? वो झूठ बोलता है। मुकाशफा की किताब 21वें बाब की 8वीं आयत निकाले। मुकाशफा की किताब एक बंदा निकाले, मुकाशफा की किताब 21वां बाब और उसकी 8वीं है। यहाँ पे 8 लोग ऐसे हैं जो कभी आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। बड़ी ज़बरदस्त लिस्ट यहाँ पे हमें मिलेगी। 8वीं है, 21वें बाब की 8वीं है, पढ़ दी। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों सब दुआवां भी बड़ियां ही कराई ने, पर इंज ही लगता है जिन्हें किसी कुशकारी से काम ही बन छड़िया। आप काम पे जाने को दिल नहीं करता ते काम बन छड़िया भी तू जाना ही तो बनिया बनाया ये जी। एक बारी ना शैतान कोने ते बह कर रोन दिया ते किसी ने पूछा क्यों रोना है? कहना शैतान ते मैं है जेडे काम मैं करना वो तो बिल्कुल ठीक है, ते जेडे मैं नहीं करता ए लोकी मेरे ते वो भी पाई जाते। काम करना खुद नहीं ते कहना मेरे ते किसी ने लगता कुछ कर देता है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी खास बात है, लिखा है जादूगर भी आसमान की बादशाही के वारिस। मूसा 8 लोगों की लिस्ट हम पढ़ रहे हैं, उनमें जादूगर भी हैं। कई ईमानदार भी जादूगरों का सहारा लेते हैं और हाथों की लकीरें चेक कराते हैं। और नहीं मैं तो नहीं जाना चाहता पादरी साहब, और जो मेरा पड़ोसी है ना मेरे बड़ा ही प्यार करता, फिर मैं वो कहने चले ही गया। जिन्ना मर्जी तेन प्यार करे, यीशु से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता।
ये मेरी बात से में रख, यीशु से ज़्यादा तुझे कोई, यीशु मसीह तो प्यार का सर चश्मा है। लिखा है उसने अपनी जान दिया को दे दी और अपने आप को पेश कर दिया, किनके सुपुर्द कर दिया। एक कम 40 घोड़े खाए और घोड़ों की मार से कलाम फरमाता है उसका चेहरा बिगड़ गया। बिगड़ने से मुराद उसका चेहरा पहचाना ही नहीं जा रहा था। तेरे और मेरे लिए उसने मार खाई, तेरे और मेरे प्यार में। किसी ने कहा यीशु सलीब पर क्यों लटका रहा? तेरे और मेरे प्यार के लिए। तो अगर प्यार की बात करें तो शाहरुख से ज़्यादा तुझे प्यार है यीशु से करता है, मधुरी से ज़्यादा तुझे प्यार यीशु करता है, तेरी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा शायद तुझे यीशु प्यार करता है, तेरे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा शायद तुझे यीशु प्यार करता है। लेकिन ये तुझे जानना होगा कि यीशु तुझे प्यार करता है। तो कहाँ से जंप करके आए थे? जादूगर जो हैं वो भी आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे। नंबर 6, और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा। मेरे पीछे कहें और आवाज काट नहीं, और सब झूठों का हिस्सा। तुसी तो नहीं ना बोल दे हैं, तुसी तो बहुत अच्छी, वेरी नाइस, मेरी क्लिशे बड़ी जबरदस्त है। फिर पीछे मेरे कहें और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली चील में होगा। तो सीधे नहीं ना बोलते झूठ। मैं कंडीशन बता रहा हूं कि जो इब्लीस से है उनकी सबसे पहली जो सिफ्त है वो क्या है? वो बीवी से भी झूठ बोलेंगे, वो माँ से भी झूठ बोलेंगे, वो बाप से भी झूठ बोलेंगे, वो दोस्तों से भी झूठ बोलेंगे, वो अपने पास्टर से भी झूठ बोलेंगे, वो अपने एल्डर से भी झूठ बोलेंगे, वो अपने डीकन से भी झूठ बोलेंगे। ये पहली सिफ्त है शैतान, इसलिए वो अपने बाप इब्लीस से है। कहाँ है इससे झूठों का? है काश हम यीशु की पेन समझे। यीशु ने कहा तुम क्यों नहीं समझते? मैं इसको फील कर रहा हूँ, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? आगे सवालिया निशान। उनके दरमियान मुझसे हुए, उनके दरमियान बड़े बड़े काम हुए, उनके दरमियान 20,000 को यीशु ने खाना खिलाया, उनको कलाम फरमाता मुर्दे उनके जिंदा किए, उनके बीमार अच्छे किए। मैं कुछ पढ़ रहा था, कलाम में लिखा है शागिर्द आगे चले गए और यीशु जब तक बीमारों को रुखसत ना किया वहां से ना हटा। मुकम्मल ड्यूटी थी, तो भी क्लेम, तो भी यीशु पर इल्जाम। मैं आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना और सुन रहे हैं? सब कुछ कर रहा है, सब कुछ उनके लिए किया है, तो भी उसके कत्ल करने के लिए वो राजी है। सब कुछ तकलीफ में गुजारा है। और कलाम ये फरमाता है जब दुनिया से ना बन पड़ा, लिखा है जब किताबों में जो अंबिया आए 1,44,000 वो भी ना कर सके, तो लिखा है उसने अपना ही इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अपना पुत्र दे दिया, बड़ी जिंदगी दी। पर कलाम में लिखा है उन्होंने मुझे हकीर समझा, खुदा का मारा और टूटा हुआ। वो सारी बातें ठीक है, ये बात ठीक नहीं। यीशु को कत्ल करना चाहते हैं, तालीम से वाकिफ नहीं। यीशु ने कहा तुम मेरी क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मेरी समझो, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ। और आज मैं भी आपको ये कहूँगा, खुदा के कलाम की बात को समझिए। और इब्लीस क्या करता है? उस पर से वो सच्चाई पर कायम नहीं रहता। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। असी नहीं, कलाम फरमाता है जो शैतान है वो झूठ का। आप तो नहीं ना बोल, बड़े इनोसेंट क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे सवाल करूँ कि आप जैसे कितने जो झूठ बोलते हैं, तो आपने किसी ने भी हाथ नहीं उठाना क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं।
لیکن کلام یہ فرماتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ چرچ کا ایلڈر ہے, وہ چرچ کا ڈیکن ہے, وہ چرچ ممبر ہے, وہ پادری صاحب ہیں, وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہیں, وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں, جھوٹ اپنی زندگی سے دور کریں. اگر آپ اس وائرس کا شکار ہیں تو اس وائرس کو اپنی زندگی سے دور کریں. اگر آپ کی زندگی میں یہ بیکٹیریا موجود ہے جھوٹ والا, تو اس کو ختم کریں پلیز, اس کو ختم کریں. خدا کا روح ناراض ہو جائے گا. جھوٹے پہ خدا کا روح نہیں آتا, یاد رکھیں. بالکل وہاں آتا ہے جہاں سچائی ہے, اور لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو وہ تمہیں آزاد کرے گی. ہوگے تو کرے گی نا. اور سچائی کیا ہے؟ سچائی تیرا اور میرا یسوع ہے. یہ وحد وہ ہے جس نے اپنا بازو کھڑا کر کے مذہبی لوگوں کے درمیان یہ کہا تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے گا. کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. میں 32 سال سے جیت سنا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن یاد رکھیں, اپنے آپ کو پیور کریں, اپنے آپ کو سکیور کریں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم کلام کا یقین کریں گے. اور 45ویں ہے, لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے. اب ایک لو, یسوع مسیح کو بھی ایسے مسائل کا سامنا تھا. وہ سچ بولتا تھا پر لوگ اس کی بات نہیں مانتے. حضرت صاحب, آج کئی خادموں کو بھی اس کا ایکسپیرینس ہے. وہ سچ کہتے ہیں پر لوگ یقین نہیں. وہ کہتے ہیں سب کو کیا ہے. یاد رکھیں, خدا کا کلام سچا ہے. آئیے آخری بات کریں گے. تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. میں اینڈ کر رہا ہوں جی. جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو. اب کہاں گیا ان کا وہ جو ایمان باپ ابراہیم میں تھا, اور پھر وہ کہہ رہے ہم خدا سے ہیں. اب نظر آ رہی ہے ان کی زندگی میں کچھ چیز؟ باپ ابراہیم کا رویہ نظر آ رہا ہے؟ کچھ چیز دسو. خدا کا رویہ نظر آ رہا ہے؟ تو پھر بھی وہ کہتے ہیں خدا کی. اور ہم کون سا مقدر ہے کیا اور میں خدا کے نہیں ہیں؟ ہم سبھی خدا کے ہیں. اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا ہم خدا سے نہیں ہیں. کلام یہ کہتا ہے ہم اپنے باپ ابلیس سے ہیں. یہی لکھا ہے نا کہ تم پھر اپنے باپ ابلیس سے. اور جو جھوٹ بولتا ہے مکاشفہ کا مصنف کہتا ہے وہ آگ میں جلے گا, اور آگے کیا لکھا ہے وہ دوسری موت مر جائے گا. 2 موتیں اس کو آئیں گی, یہاں بھی مر جائے گا اور آسمان پہ بھی وہ مر جائے گا, کیونکہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اس لیے میرے عزیز آج سے میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر تو خدا کے کلام پر یقین کرتا ہے تو پلیز اپنی زندگی سے جھوٹ کو دور کر دے, کیونکہ خدا فرماتا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو وہ تمہیں آزاد کرے گی. خدا ہم اس کلام سے بات کرے.